Hello, welcome students. Good evening. Hey, uh, good. Shrestha, who else are there? Okay, almost everybody is there. Janvi, Paras, well done in your test. Janvi, Tanvi, very good. Abhishek, Shrestha, Mohini, Tanvi, Vadani. Good evening, Tanvi. Okay, the first, the first paragraph is about it is in Bristol. Now, this is one thing you should follow this news. The black uprising in the United States and Britain and everywhere it is happening. So try to understand they never happened in isolation. So remembering, just to remind you, that there was a wave of revolutions that has started around 9 years back, which was called Pink Revolution, Jasmine Revolution. It started from Tunisia, then it was Egypt, then it was Libya. It moves around the world. So this is a new revolution. Now let us see from where, which shape it takes. Because when the public is, परेशान रहती है, they don't know where to take off your anger, and they all join in one call. Like in India, it had happened. If you remember, it was the rape of that girl Nirbhaya. People were angry, and they all united, and they stood up behind Anna Hazare, and that's how Kejriwal was formed. So this is about black uprising and most of the European countries, including America and European countries. So follow it up closely because there are very good thoughts. It's like the liberals are talking about this particular passage is about Carlson's statue was removed. This Bristol is same आपके cigarette वाले. Rhodes University. Rhodes is the person who is the founder of Wills. The people are trying to change the names. So if it comes to India, India mein already that movement is going on by the government. Like UTS, they are and Delhi, they are creating something. They are changing the names to Gurgaon. So is it good or bad? One has to discuss. In the name of removing injustice, are we creating another injustice? And if you have to remove it, how to remove it? Question of first RC passage. First question: which of the following is an apt? Apt is suitable, perfect. Probably आपका aptitude the word निकला है ना. That is to find out. It's not, the meaning is not maths or it is not attitude. It is your aptitude, your suitability for a particular job. So which of the following is the apt essence of third paragraph? Now, how will I get answers? है ना? Krishna Goswami, very good, welcome. Janvi, Abhishek, answers. I need answers. Good evening. Answers. Which of the following is an apt essence of the third paragraph? Third paragraph is here. Apt essence. One, two, three. It's two-liner. Typically, yes, the answers have started coming. Ashwin, almost all of you are coming with D. Let me read it. Typically, I find myself unable to back either side. है ना, in this debate, giving the topplers of Colston 1.5, the full hurrah is for the drive to make our public space more diverse in who they celebrate and remember. So you, e, दिल्ली कहाँ से होगा? दिल्ली कहाँ से होगा? You sure it's Delhi? See, we have got four options. Author is unable to make either. That is essence नहीं है. Author is not in favor of giving full marks to the topplers. Author fully backs the movement for the demolition. And let us see, it's C or D. Typically, I find myself unable to back either side in this debate. Now, when they're saying either side in debate, they are saying one who is saying topple it, to those who are toppling it, and the other side debate. Nothing about entirely. Back to कर ले मैं full नहीं. Giving the topplers of Colston 1.5 cheers. हम बोलते 2 cheers for hip hip hooray, 3 cheers for hip hip hooray. The full hurrah, 3 cheers. The full hurrah is
for the drive to make the people who are behind this movement. That is what she's saying. I don't give, there is a this thing in debate, but the movement that the people who are being this movement, who are making that public spaces should become more diverse. कि किसे याद रखेंगे, किसे celebrate करेंगे, so that spirit he or she is talking about. So answer will be C, Calcutta. Answer will be C, Calcutta. The courage of the topless, courage of the topless, but does not. That is not. She said, I don't fully agree with that, and she gives 1.5, but she gives full hurrah. She said there has to be a movement that shameful past में किसे रखना है और किसे नहीं रखना है ना. Full hurrah, you forgot it, and we ask you the essence. Full hurrah is for, ये तो बहुत क्लियर कट है. I find myself I want to back either side of this debate entirely, है ना. टॉपलर्स जो है जिन्होंने गिराया है उन्हें she has given already 1.5, but full marks अगर किसे देना है is to drive that movement. The movement, what is this movement is doing? It is making public spaces diverse. In what sense? Whom we should celebrate and whom we should remember, and indirectly whom should we not remember. Answer is C, Calcutta. करेज की तो बात ही नहीं हुई. देयर इज नो नीड ऑफ करेज. करेज वर्ड कहीं क्वालिफाई नहीं हो रहा है. हिम्मत की दाद नहीं देते. With whom she is standing. So she said 1.5 marks I've given, but I cannot fully agree with you. In the process she has said, this is the gist of the passage. चलिए देखते हैं. Second, author wants to convey the message through para 4. What is the message through para 4? Let us look at what are the 4 options. One is there is a considerable consensus. Message. Meaning nahi pucha hai Shrestha. Message. There is a, first is there, let me read it first then put answers. There is a considerable consensus that statues that are of zero artistic merit and venerate or respect bad characters should be replaced with uh, the people who reflect our civic virtues. मैसेज बी में आ रहा है मैसेज कि मार्विन रीज हु इज हेरिटेज when he said I cannot I grew up he does not agree with the topless. बॉम्बे क्या बोल रहा है? He does not agree with the topless. he बोल रहा है he agrees with the topless. And D बोल रहा है कि public monuments reflect our civic values and it were right that they were so forcefully removed. Now this talking about fourth paragraph. Fourth paragraph. See, once in a week we are moving into tough ones. Yes, this is the fourth paragraph. Public. Now the question is message. The public monuments reflect our civic values. This one we are reading. And it can't be right that they are so dominated by white man, number one. Nor can we stuff any corner with new movement to correct the imbalance. Okay. Some of the old ones have to go, and those they have little artistic value. Little is nothing. A little यानी थोड़ा सा. And merit, and that venerates dubious characters, doubtful characters should be at the front of the queue. कौन सी लाइन के जिन्हें निकालना है? It is difficult to argue with mere. It is difficult to argue. मतलब आपको agree होना पड़ेगा. It is difficult to argue, so you have to agree. And this mayor is a Jamaican, so that he is black. When he said, I cannot pretend मैं दिखावा नहीं कर सकता. दिखाने के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकता कि स्टेचू गिरा तो मेरा कुछ लॉस हो गया. I cannot pretend that I have any sense of loss for the statue. Number one. मैं ये भी दिखाना नहीं कर सकता. I cannot pretend it was anything
अदर देन अ पर्सनल एफरेंट का मतलब होता है इंसल्ट। ये भी नहीं दिखा सकता, मतलब ये इंसल्ट था, मैं दिखा नहीं सकता कि ये इंसल्ट नहीं था टू मी, and have it in the middle of Bristol city, which I grew up. So what he's saying, try to understand. The author is saying it is difficult to, आप झगड़ा कर ही नहीं सकते रीच से, क्योंकि रीच बोल रहा है कि मैं दिखावा नहीं कर सकता कि मेरा लॉस नहीं हुआ है, दैट मीन्स इज सेइंग मेरा लॉस हुआ है। मैं ये भी दिखावा नहीं कर सकता कि ये मेरी और ब्रिस्टल की इंसल्ट नहीं था ये स्टेच्यू, दैट मीन्स व्हाट ही इज सेइंग कि दस गिरा वो अच्छा हो गया, दिस स्टेच्यू वाज एन इंसल्ट टू ब्रिस्टल एंड टू मी। अब कैसे आ गया अंजलि आंसर सीधे, Anjali, Ashwin, Jahnavi, phenomenal, phenomenal. One thing I'll tell you here, let me stop and tell you one thing. I told to one or two students, I have been requesting you, देखो आपका 99% का एक ही की है आपके पास, you keep on doing those score builders, pocket box. I tell you why. Do you think that Virat Kohli or Dhoni, they hit sixes on tough balls? No, tough balls they gave due respect and they took a single or they just simple played the ball. They were expert or they are experts in recognizing an easy ball. Easy ball मिला कि सिक्स गया उनका। आपको भी जो ये फैट चढ़ा हुआ है ना, डिफिकल्ट 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 करना, डिफिकल्ट को तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा आपको। उसमें सवाल इतना होगा कि 3 मिनट देके वो क्वेश्चन सॉल्व करो, सही होगा या गलत होगा, 3 मिनट जाना ही जाना है। बट जो 100 क्वेश्चंस में 30 जो ये बॉल रहेंगे ना हिट करने वाले, इसमें जो बंदा इसको पहचान लेगा और हिट मारेगा, पता चला कि वो जो इजी बॉल है उसमें भी 3.5, दैट इज हाउ पीपल आर नॉट एबल टू मेक इट 99% टाइम। सेकंड थिंग, आई अगेन स्टार्टेड रीस्टार्टेड vocab, spent 10-15 minutes with it, and third thing is वो ग्रामर की 30 शीट्स पड़ी हुई है आप लोगों ने नहीं की, those sheets will so take off burden from you because your ANMAT, your SNAP is very heavily dependent on vocab or the kind of मैथ्स फॉर डमी, बड़े आराम से टॉप कॉलेजेस उठा लोगे वहां पे। So remember one thing, you have to practice tough. टफ प्रैक्टिस इसलिए करना है कि उसे विकेट नहीं जानी है, बट स्कोर जब सिक्सर मारोगे ना, इट हैज टू बी इजी वन। सो ये दिमाग से निकाल डालो, अरे टफ 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 उठाना है। मैंने देखा है टाइम में टफ 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 उठाते हैं, तो टफ उठा ही लेते हैं पर ज्यादा नहीं हो पाते ना। जो टॉपर जो क्रीम केक का जो क्रीम बनेगा ना, वो ये छक्के मार मार के बनेगा, जो एक 10-15-20 गरीब मिल जाएंगे ना, उड़ाओगे उन्हें छक्के पे तब। सो डेवलप दैट आर्ट ऑफ हिटिंग सिक्सर्स, ये पेन को हाथ में लगाया उड़ा दिया। एंड vocab is time, very good one. So we were on second one, very good. Now let us come to third. Author, acha, second, one more thing, I'm sorry, especially for girls. Girls are very, responsible kind of gender. But then there is one thing, they generally don't like to go wrong. है ना? Okay, sure, Ashwin. I used to put, but people were not interested. I'll start putting reading articles also, right? So girls क्या गलती करती है? 12 years I have been finding what is wrong. Girls are, number of girls is less than 99%. They are not taking risks. But all girls, my request to you is प्रैक्टिस में तो पूरा टेस्ट छोड़ा, पूरा गलत जाता है तो कोई नहीं। सो वो रिस्क एवर्स की जगह यू बिकम ए रिस्क टेकर। तो फिर कैड आएगा तब देखेंगे अपनी क्या एक्यूरेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, नाउ दिस क्वेश्चन अगेन, author's position in paragraph 5 can be described at, अब चारों को समझ लो, फर्स्ट इज एन idiom, सेकंड इज एन idiom, थर्ड इज हाफ एन idiom, फोर्थ उसने खुद ने यूज किया है। फर्स्ट इज कॉल स्पेड ए स्पेड, जो जैसा है वही अच्छा है तो मैं अच्छा बोलूंगा, बुरा है तो बुरा बोलूंगा, मैं कुछ आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिप्लोमेटिक, जो है वैसा बता देंगे। A very famous quote is neither condone nor condemn. Condemn का मतलब होता है to criticize एंड कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक। ना तो मैं ओवरलुक करूंगा और ना ही क्रिटिसाइज करूंगा। He is half of the idiom, everything is fair in love and war, सब चलता है, you can use any tactic. And fourth is saying benefit of vigilantism, विजिलेंट आपने देखी होगी वो मूवीज बहुत सारी आ रही है, सीरियल्स,
Civilians now they are taking the law in their own hands, so they are called vigilantes. But then he is asking paragraph 5. So paragraph 5 is 1, 2, 3. This was 1, 2, 3, 4, and 5. I hope this is 5, right? So this is 5. Okay. Uh, However, like Rais, we carefully not to condone. This person was careful not to condone. The rule of law does matter, and we should always be wary or alert of cheering on those who ignore it. And yet, P.T. Patel's condemnation of toppling as utterly disgraceful, ये उनके बारे में बोल रही है कि यूएके के जिन लोगों ने कहा प्रीति पटेल ने कि it is disgraceful, आर्मी बुला लो. So this is too strong. There is a long and proud tradition of civil obedience which is justified when it is open, proportionate for a goal and a last resort. Now, these conditions were arguably met on Sunday. Historian Kate Williams' Twitter thread is a concise primer on why the argument that protesters should have lawful means rings hollow. अब ये author क्या बोला उसमें कोई दम नहीं है. People have been trying to either remove or put it in a more accurate historical context for years. किसी ने नहीं सुना. It always hit a brick wall. So I am, although author का देखो, I am uneasy with vegetarianism. Uneasy, मैं इसकी निंदा नहीं कर सकती है. गिराया, I am uneasy. I am prepared to give them the benefit of doubt. This line will tell you कि है ना author's position पूछी है तो author position है कि although I am uneasy, but what is it again? Let us go. Uh, I am uneasy. Although I am uneasy with the vegetarianism, I am prepared to give the benefit of doubt. So answer आपका qualify होगा neither condemn nor condone. Paras picked up rightly. जानवी जो है वो है उसने बोला नहीं शी इज ट्राइंग टू अवॉइड देखो आप देखो इसको ध्यान से देखो जानवी देखो ये इसने कुछ बोला है क्या ये सिर्फ घुमा गई बात को या घुमा गया हु इट इज है ना सो ऑल दो आई एम अनईजी विथ जो गिरा है उससे आई एम अनकंफर्टेबल यार गिरना नहीं चाहिए था बट मैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देती हूँ मैं उन्हें कंडेम नहीं करूंगी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ ये कोई बात हो गई या तो आप बोलो अच्छा किया या आप बोलो बुरा किया दैट वुड हैव बीन कॉल्ड स्पेड एंड स्पेड बेनिफिट ऑफ वेजिटलिज्म इसलिए नहीं होगा कि शी सेड आई एम अनईजी और एवरीथिंग फेयर इज लव और वो भी मना कर रही है ओके लेट अस कम टू फोर्थ such reminders are needed because they point to injustice that are all too present what kind of reminders कॉमन बहुत सीधा ये अगर this kind of question you go wrong Janvi Wag says B Nishan says B ओके देखते हैं यार देखो व्हाट काइंड ऑफ रिमाइंडर्स तो ये स्टेचू है बट दिमाग लगाओ ना you want to be present this kind of reminders are needed because they needed का मतलब है मत गिराओ और आप क्या बोल रहे हो डिमोलिशन पिकअप कर रहे हो बेटा क्वेश्चन है सच रिमाइंडर्स आर नीडेड नीडेड मतलब इन्हें मत गिराओ statues of people with the history of injustice existing as a reminder yes ragini that's a good one अश्विन ने सही दिया है वो बोल रहा है नीडेड तो गिराव नहीं की बात ही कहाँ जा रही है क्वेश्चंस यहाँ डिफिकल्ट होता है बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिस काइंड ऑफ सच रिमाइंडर्स आर नीडेड रिमाइंडर्स क्या कॉल्सन जैसे क्यों नीडेड है कि हमें पता चले हम पे भी अत्याचार हुआ था एंड वी रिजॉल्व दैट अत्याचार दोबारा नहीं होगा same thing can happen to us as far as India is concerned it should tell us कि because we are divided we were slaves so we'll not again be slaves है ना? or that defeat of
China should give us a reminder. No, next time there will be no debate. Why not A? मोहित देखिए कि history of injustice done on the period of Bristol. Very good question पूछा, ये और लोगों ने पूछना चाहिए था. How do you know ब्रिस्टल के लोगों पे injustice हो रहा है? वो तो शांति से जी रहे हैं यार, इन लोगों को थोड़ी मारा है. इवन जिसको मारा गया, जिस आदमी को मारा गया, वो तो अमेरिका में मरा बेचारा, और यहाँ पे ये ब्रिटेन की बात चल रही है. तो इन लोगों पे अभी अत्याचार थोड़ी चल रही है. ये ब्रिस्टल पे तो, ये ब्रिस्टल वाज वंस अपॉन अ टाइम a full flash white town. The atrocities were done on the Negroes or the black cow. They were picked up from Africa and it was done everywhere in the world. So this is against them, against Bristol. The Bristol is not free. Nobody is saying that कि अभी हम पे, they are saying discrimination हो रहा है. कार्लसन तो मर के 300 साल हो गए यार. जब वो जिंदा था और उसका स्टेचू लगाया कि दिस पर्सन वाज जो शान है, तब तो वहां पे शायद निग्रो सारे गुलाम थे. वहां पे पीपल ऑफ, दे वर नॉट इवन सब्जेक्ट्स, जिसको हम सिटीजन बोलते हैं. तो फर्स्ट तो क्वालिफाई नहीं होगा ऑन द पीपल ऑफ ब्रिस्टल. पीपल ऑफ ब्रिस्टल वर वाइट्स. गॉट इट बॉय. लेट अस टेक फिफ्थ, आयरनी. आयरनी है, हम जो करने जा रहे हैं उल्टा हो रहा है. हम बचाने जा रहे हैं और इन प्रोसेस से मार डाल रहे हैं. आयरनी बताइए. बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट 2 वीक से we'll have to pick up tones also. कृष्णा से सी. क्या बात है, क्या बात है. Fantastic. That was a very fast one, Krishna. Yes, doing धमाल आज. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. सी कैलकाटा. अदरिंग फैक्टर, देखो क्या होता है. एक न्यूटन का लॉ था, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. बट वो उसे आयरनी नहीं बोल सकते. यहाँ आयरनी क्या है कि आप फाइट करते करते कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्लैक रेशियल सिस्टम चालू हो जाए. So othering factor involved in any anti-racial movement, it itself a kind of, very good. अश्विन, फर्स्ट इसलिए नहीं होगा. Icons of the past generation becoming a symbol of racism. ये मूवमेंट के साथ आयरनी की बात नहीं की है उसने. उसने जो आयरनी बात की है, दिस इज एन आयरनी, वेरी परफेक्टली ऑल राइट. बट व्हेन वी, in question he says or he doesn't say, it is an irony. तो आयरनी जो बात की है ना उसने यहाँ पे, आई थिंक वेर इट इज. Let me see. If you say he has used here othering, yes. ये देखो आयरनिकल वर्ड उसने कहाँ यूज किया है. Smashing up statues and decrying dead Victorian risk becoming a part of comforting narrative. Ironically, it was the version of othering. Got it? So that is one of the lesson. If we have stick to the authors of the paragraph. Uh, so let's, ये हो गया. चलिए. Let us move to passage 2. Okay. Again, this passage again, it will help you to take the positive this thing. चाइना हम लोगों ने पहले लिया था, and it's becoming a big issue. About China, let me tell you one thing. मीडिया बहुत उठ पटांग बातें चल रही है. The thing is that I'll tell you, because for you it's very essential to know. कि India and China border, like Pakistan, we have LOC, line of actual control, which is drawn. Both the countries respect it. In China, it is an illusory line. इसलिए LAC कहा जाता है, एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, एंड इल्यूजरी लाइन है. एंड बोथ द कंट्रीज नो इट, बिकॉज वहां पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है. सो व्हाट दे डू, कि बिल्कुल बॉर्डर पे जो फोर्सेस होती हैं, दे आर नॉट अलाउड टू कीप आर्म्स. दे नो दैट कि चूंकि इल्यूजरी है तो बार बार एक दूसरे से भिड़ेंगे ये, और इनके हाथ में बंदूक और बम होगा ना तो एक दूसरे को मार देंगे. दैट इज व्हाट हैपेंस. कि वो बोलते हैं कि ये लड़ ले, एक दूसरे मार ले, बट लेट देम, कमांड ऊपर की कमांड डिसीजन लेगी और इमीडिएटली 24 आवर्स में सुधार देंगे. So neither Chinese were carrying arms nor Indians were carrying arms. Now
We are saying that they had batons in their hand. batons इंडियन के पास भी थे. Now we are saying कि उन्होंने तार बांध रखे थे. इंडियंस ने तार बांधे थे, नहीं बांधे थे. The terrain was so difficult कि थोड़ा सा धक्का लगा कि आदमी खाई में गिर रहा था. So the truth is that we lost 30 of our men, they lost 45 of our men. और actually सच्चाई ये है कि when both commanders said दोनों साइड से 30-40 सोल्जर्स को कोर्ट मार्शल करना पड़ेगा, because the reason is they should have immediately uh, alerted their commanders and सीओ ने वहां पे बैठ के बात करके they should have gone back because समझौता हो गया था, वो टेंट टूटना था. But let us see what more happens. The times are different. Which of the following does not count as the author's definition of good journalism? Yes, answers please. Which of the following does not count? मतलब चार में से तीन ऑथर की अच्छे डेफिनेशन की परिभाषा है. ऑथर बिलीव्स इन फेयरनेस इन द अटेम्प्ट बोथ साइड. ठीक है, आप भी बोल रहे हो, अभिषेक और जानवी देखते हैं. ऑथर बिलीव जर्नलिज्म एज द यस. P is not author's definition because he said कि ये तो सारा डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगा. तन्वी वेल डन, everybody well done, because he doesn't agree to the place of moral clarity. Approximation of truth by filtering different views, author agrees. uh, Head and heart, lucidity to think and a passion to feel. Yes, great one. uh, Very good. श्रेष्ठा सी में कैसे चले गए? देखो ठीक से पढ़ो. सेवेंथ, ऑथर इज. कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है. देखो फटाफट आंसर दे दो और सब गलत हो जाओगे. दिस क्वेश्चन विल गो डाउन द हिस्ट्री एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. जानवी बाग बोल रही है डी है. जानवी देखो आपके बाद अभिषेक ने और अंजलि ने सी कर दिया है. कृष्णा कृष्णा अग्रवाल बी बॉम्बे बोल रहा है. मोहित सारस्वत कैलकाटा बोल रहा है. अंजलि कैलकाटा बोल रही है. कैलकाटा दिल्ली कौन सा आएगा भाई? अफ्रीकन बॉर्न और अमेरिकन बॉर्न. अफ्रीकन बॉर्न और अमेरिकन बॉर्न. व्हाइट जर्नलिस्ट तो है. अफ्रीका बॉर्न कहाँ दिया है भाई? अफ्रीका बॉर्न देखते हैं. लेट्स सी. कहाँ है शायद. इफ कहाँ है? when he says no, I have lived as a white life, you can must make a referred, है ना. I have worked from South Africa where I had spent my infancy. He is nowhere saying that he was born in Africa. He said, I have worked from South Africa where I had spent my infancy. बचपन के दिन गुजारे. अगर पैदा होता तो क्लियर कट बोलता है कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन साउथ अफ्रीका. ही सेड देयर आई वर्कड, आई स्पेंट माय इन्फेंसी देयर. आंसर इज सी, कैलकाटा. व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन व्हेन ही राइट्स knowing that something in the queer जो ना जो तीर रखते हैं वो spears you keep. ऑथर ने यहाँ ऑथर्स ओपिनियन पूछा है और ये यहाँ से निकला है. इट्स फ्रॉम हियर. देख लो फिर उसके बाद आंसर देना. Rebuild our industry, democracy, publishing peace. Yes, यहाँ से. Let us read from here to here. I am a writer. James Baldwin wrote, I like doing things. इसके पहले क्या बोला? पहले से देख लेते हैं. That is what distinguishes a journalist. Heading towards the storm in the opposite direction. ये डायरेक्शन तो देख ली, वो डायरेक्शन भी देखेंगे. Seeking and understanding by being there. Uh, Bearing witness involves looking into the eye of the stranger who lives, whose lives and ideas seem irreconcilable. I am a writer.
I like doing things alone. To be alone on deadline is the journalist lot, facing many faceted world and seeking the means to render it as closely as possible, knowing that क्यों, that something in the career of life is always ineffable and will slip through the cracks. कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता चल जाएगा. As closely as possible जाओ कि कहीं तो भी क्रैक होगा, and I'll get some useful information or insight on the understanding. जो उसने बाद में सरजवा के बारे में, बोस्निया के बारे में बोला है कि they consider why. तो ये वही उसी का कहना है. तो आप आंसर क्या उठाओगे क्वेश्चन 8 का? दिल्ली बोल रहे हैं भाई साहब, अंजलि वगैरह. यस, ग्रेट. नाउ दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. दिस वाजंट इट. अभिषेक गलत चले गए, देखा? गुड वन, नो प्रॉब्लम. ओके, now let us go to question 9. What is the purpose of the last paragraph? Last paragraph. Uh, Last third paragraph. Yes, answers. एक बोल रहा है कि इट्स एन assertion, बहुत इजी है. assertion जो बोला है वही उसने रिपीट किया है. बॉम्बे बोल रहा है अगेंस्ट में बोला है. थर्ड में बोल रहा है उसी की बात को और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सटेंशन कर दिया है. एंड डी भी वही बोल रहा है. अभिषेक श्रीवास्तव ने बोल दिया बॉम्बे, वेरी फर्स्ट क्लास. अभिषेक अग्रवाल क्या हो रहा है भैया, आज बोर्ड में नहीं दिख रहे हो. आप बोल रहे हो कि एन एक्सटेंशन. चलो देख लेते हैं, लेट्स सी. तुमने बोला है लास्ट, which one? Last third. Okay. One, two. I still believe, ये वाला है. यहाँ पे पहले अब तो देखना पड़ेगा लैरी ने क्या बोला है. The shift was well captured by Laurie, a black journalist who left Washington Post after crash हो गया. Uh, he said, American view from nowhere, objective says we need to rebuild our industry as one that operates from the place of moral clarity. यहीं से तो अपन ने लिया है कि ऑथर की डेफिनेशन नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है. अब इसके आगे देखिए जवाब क्या दे रहा है यहाँ पे. I still believe in one side journalism, and I still believe in both side journalism. तो ये तो उल्टी बात कर रहे हैं. Place of moral clarity can easily mean there is only one truth, and if you deviate, you are done for. The liberal idea that the freedom is served by open debate, even with holding people's repugnant view, is worth defending. And if conformity wins, democracy dies. So he is against. So जिन्होंने भी बॉम्ब में मारा था, they are perfectly all right. Question number 10. The message in the fourth paragraph. The message in the fourth paragraph. History can illuminate but cannot blind. Objective is the most rewarding quality in journalism. Journalist should know both a victim and journalist की ड्यूटी है दोनों को पहचाने. And genocides are done by people जो भ्रम की अवस्था में रहते हैं. 10th का आंसर भाई. 10th का आंसर पूछा है. The message in the fourth paragraph. 1, 2, 3, 4 ये आ गया. This is what distinguishes a journalist heading towards the storm in the opposite direction from the crowd, seeking to understand. धपाधप मारे हैं. सी या बी? Tanvi is right. Mohit is right. Bombay is not right. Paras right. Answer is C. Ashwin. देखिए, the thing is that general objective is the most rewarding quality of journalism. आपने ये लिया है फोर्थ पैराग्राफ, देख लेते हैं फोर्थ पैराग्राफ. आपको समझाना पड़ेगा भाई. 1, 2, 3, 4.
Uh, this is what distinguishes a journalist heading towards opposing direction. ऑब्जेक्टिव वर्ड को ढूंढ रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव वर्ड ही नहीं आया भाई यहाँ पे। वहां तो बोल रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द क्राउड, मतलब क्राउड इधर भाग रहा है कि उधर कुछ हुआ है, उधर गोली चली है, तो आप उधर भाग रहे हो पता चलाने के लिए कि गोली किसने चलाई। ऑब्जेक्टिव बात ही नहीं है। अंजलि भी कैसे होगा, कौन सा वाला है, भी हो ही नहीं सकता है, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। फोर्थ पैराग्राफ है जर्नलिस्ट शुड नो। 11th, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लास्ट एंड लास्ट बट वन। लास्ट का, लास्ट के पैराग्राफ से क्या रिलेशन लास्ट बट वन से। एक बोल रहा है लास्ट टू पैराग्राफ्स आर द कंडेमनेशन ऑफ बेनेट। लास्ट टू पैराग्राफ्स आर द, एक बोल रहा है बेनेट का ये है, एक बोल रहा है सीनेटर का है। सीनेटर इज वन जिसका ओपिनियन आया था, और ओपिनियन छापने के कारण ये बेचारा एडिटर था बेनेट, इसको निकाल दिया गया। penultimate paragraph is about what we see, and the last one is what others feel about Senator Tom's article and resignation. ये बोल रहा है कि पेनल्टीमेट पहले वाला, देखो दोनों में उल्टा कर दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि लास्ट बट वन पैराग्राफ है वो इज अबाउट व्हाट ऑथर फील्स एंड द लास्ट अबाउट वी सी, और उसके पहले वाला क्या हो रहा है कि पेनल्टी इज व्हाट वी सी एंड लास्ट इज व्हाट ऑथर्स फील। यस, you people are great, congratulations, very well done। क्या बात है, बाय द टाइम आई रीड आपने सी 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 ठोक डाला। एक्सीलेंट। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आरसी पैसेज, नहीं हो गया खत्म। नावेश, यस, सीरियसली वीकन कर दो इस आर्ग्यूमेंट को, बिकॉज सूखा पड़ा है फ्लोरिडा में, ऑरेंजेस कम होंगे बट ना चले, तो भाव रेट्स विल बी 3 times। The first line is saying if there is a drought in Florida, so the crop is going to be less. That is one inference. And the price of orange this season will be thrice the usual price. And this will drive up the conclusion. First is premise. And if that premise is right, second is conclusion that this will drive up the cost of producing orange juice and thus push up the, uh, देखो, भी तो सही है, सी को बहुत लोग जाएंगे, दैट इज व्हाई आई चोज दिस वन। बट सी में भाई आप 10% भी ऑरेंज यूज करोगे, समथिंग इट इज गोइंग टू अफेक्ट द प्राइसेस ना। तो सी उसे वीक नहीं करेगा, उसने थोड़ी बोला कि प्राइस ट्रिपल हो जाएंगे। अगर वो प्राइस ट्रिपल हो जाएंगे बोलता ना कि ऑरेंज का भाव ट्रिपल हो गया तो जूस का भाव ट्रिपल हो जाएगा, देन सी फटाक से बैठ जाता। बट इट डिड से इट विल पुश अप। तो सी जो बोल रहा है अदर इंग्रेडिएंट्स जो ठीक है 80%, दूसरा 90%, 10% भी लेते हो तो 10% को 30% की कॉस्ट हो गई, कुछ तो बढ़ेगा ना भाई। आंसर इज बी, बॉम्बे, परफेक्ट। यस, 13th, informed people जिन्हें सारी जानकारी रहती है, the people who know, generally well aware of the what is happening around, generally assimilate information from, कहाँ से गैदर कर रहे हैं, different sources, and then they form an opinion। जानवी और कृष्णा सुन लो पूरा, इसका प्रेमाइज क्या बोल रहा है कि informed people they before making in their opinion वो 10 ओपिनियन ले लेते हैं, डिफरेंट ओपिनियन। नाउ ही इज कमिंग टू मुद्दे की बात, दैट इज हिज प्रेमाइज। ये भी प्रेमाइज है कि मोस्ट पॉपुलर न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस फॉरेन अफेयर्स को, जैसे चाइना के साथ लड़ाई होगी तो कैसे देखेंगे, होम डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट की आंखों से देखेंगे, जो स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला वो सही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड लाइन। अब वो कंक्लूजन पे आ रहा, राइट। फर्स्ट टू लाइन सेज कि wise man, a literate man will collect before making opinion, he'll take opinion from divergent sources, but newspapers take, they have only one source, and that source is State Department. Now there's the premise, and his conclusion is
इन रिपोर्टिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, एक बी कंट्री में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, तो यहाँ पे तो क्या करो, एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इन्फ्रेंस पूछा है, ऐसा क्यों बोल रहा है वो? पारस बी, अंजलि डी, अभिषेक डी, ए, ए, बी, बी, ए, बी, बी, क्या बात है। चलो अपन चारों को देख लेते हैं। टू the degree that news source gives an account of another country that mirrors, नहीं, इस सस्पेक्ट ये तो नहीं है। To protect their integrity, news media should avoid, नहीं। Reporting is not influenced by the is usually more, no। The alternate source of information mentioned in the passage would probably not share the same view। ये तो रखना पड़ेगा भाई, ये तो रखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि जो आप दूसरा सोर्स लोगे वो कुछ और ही बताएगा। इसको ऐसे करके देखिए कि पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो एक काम करे, मीडिया सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है वो मत देखो, और कहीं से भी लो। तो उसका क्या करना है, पहले क्या बोला कि समझदार आदमी डाइवर्जेंट व्यूज लेता है, तो उसका क्या है ना, कि दूसरे से एक और सोर्स लोगे तो आपका ओपिनियन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग हो जाएगा। और डाइवर्जेंट होने के लिए जरूरत है कि अल्टरनेटिव सोर्स जो लोगे वो ये मान के चल रहा हूँ कि हिज ओपिनियन और हिज एनालिसिस विल बी डिफरेंट देन स्टेट डिपार्टमेंट। आंसर इज परफेक्टली डी डेली। कुछ लोगों ने बहुत तगड़ा मारा था, अभिषेक, अंजलि, ग्रेट, गॉट इट। सी इन्फ्लुएंस कहां से निकल रहा है, कि वो बोल रहा है, देखो फिर ध्यान से देखो, हमें कैसा लेना चाहिए, डाइवर्जेंट ओपिनियन लेना चाहिए। दो अलग अलग, दो या तीन अलग अलग ओपिनियन लेके, इंफॉर्मेशन लेके, और फिर अपना ओपिनियन बनाए, ये उसका प्रेमाइस है, उसका मानना है, दिस इज एजम्पशन। और इस प्रेमाइस ना वो बोल रहा है कि हमारे पड़ोसी देश में नेपाल में कुछ चल रहा है, तो यहाँ भी एक काम करो कि एक तो ओपिनियन आपने स्टेट डिपार्टमेंट का ले लिया, एक और थर्ड पार्टी का एक और ले लो। क्यों ले लो भाई, क्योंकि थर्ड पार्टी का लोगे तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, वो पार्टी बट न चले कुछ अलग बताएगी, और दो अलग अलग चीजों से मिलके समझदार लोग अपना ओपिनियन बताते हैं, वैसे पब्लिक ओपिनियन बनाएगी। कहाँ से? 14th, अगेन इन्फ्रेंस। Currently people in United States, easy है, on an average, एवरेज बोला है उसने, 1431 pounds of food per person, एवरेज बोला है तो per person per year, and this is 35 pounds more than it used to be in 1980। तो ये जो 20 साल चले गए, 30 साल पहले लोगों का उस वक्त में जो खाते थे, अभी पर कैपिटा कंजम्पशन इज 35 पाउंड्स मोर। ये हमारा प्रेमाइस है। अब ऑथर उसमें से बोल रहा है, कंक्लूजन निकाल रहा है कि दिस इंक्रीज जो 35 पाउंड्स का हुआ है is in part, not totally, in part, थोड़ा सा, because people in the age of 15 and 64, वो लोग ज्यादा हो गए। You're getting my point? एक तो उसने बता दिया पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ गया है, बोलता है नॉट 100% बट सम इट बिकॉज ऑफ कि जो पॉपुलेशन में जो परसेंटेज ऑफ पीपल बिटवीन 15 एंड 64 है उनका बढ़ गया। इन्फ्लुएंस सिंपल ही हो गया कि 15 और 16 फोर्थ के कारण बढ़ा है 35, मतलब पीपल टेंड टू ईट मोर, individuals between age of 15 and 16। yes, perfectly all right। any doubt here? जानवी बैंग, यस, सभी का बढ़िया आ गया। मोहित कौन से इसका ई पूछ रहे थे आप? एक मिनट, शायद मोहित इसका पूछ रहा था ई। A report cannot be seen as influenced by the State Department if, see, he did not say कि रिपोर्ट इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसका कहीं हुआ है क्या कि इस रिपोर्ट का क्रेडिबिलिटी है या इन्फ्लुएंस है या पार्शियल है? ही सेड डाइवर्जेंट सोर्सेस होना चाहिए भाई। जब भी कोई डिसीजन लो, जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ भी बीमारी का इलाज करने से पहले दो डॉक्टर को बताओ, उसका इन्फ्लुएंस थोड़ी कि एक डॉक्टर झूठ बोला, दो डॉक्टर बता लो, ऐसा ही है। चलिए,
15 क्या है क्वेश्चन? यस, पैरा कंप्लीशन. Which of the following is most logical completion of the passage below? Now, para completion में nothing new can come because नई चीज के लिए नया पैरा लगेगा. तो पैरा कंप्लीशन में चेंज ऑफ टोन नहीं आएगा, नया टॉपिक नहीं आएगा, नया नाम नहीं आएगा. जो है वही बंद करने के लिए या तो कंक्लूजन आ जाएगा या सड़ा सा कुछ तो भी आ जाएगा. वो आंसर आ रहा है, एक बिल्कुल पहले वाला और एक एंड वाला. कैसे हो सकता है देखते हैं ना. अभी तक दो लोगों ने डाला है 15 का. अच्छा नहीं, दोनों का सही आ गया आंसर. रागिनी, आप कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो? Many companies have been pushing for a 3-week extension of daylight saving time, which would mean that the sun would continue to set an hour later during the fall months. The owner of chain of convenience stores expect कि 15 million का फायदा होगा. बिकॉज एडिशनल क्यों? बहुत से लोग ज्यादा आएंगे कि जो अंधेरा होने के बाद आते नहीं है, तो अंधेरा होने के बाद आ जाएंगे फर्स्ट क्लास. स्पेंड लेस मनी इन द फॉल. नहीं, फॉल का मतलब वो लैंग्वेज ऐसी यूज की है कि भाई लाइट थोड़े ज्यादा देर तक जल्दी लगा दो. तो जो लोग अंधेरे में घर के बाहर नहीं निकलते ना, तो वो भी बाहर निकलेंगे और फिर खरीदी चालू कर देंगे. आंसर इज ए आगरा. परफेक्टली ऑल राइट. नाउ यू हैव 16. ओके, assumption आ गया एक आपका. The last of critical reasoning and assumption. The group of laboratory mice, uh, two group of laboratory mice were injected with cancerous cells. One group's cage were rotated and disoriented, कभी उल्टा कभी सीधा. ये हमारे पास प्रीमाइस है. और प्रीमाइस आगे भी है कि रोटेट करने के बाद क्या पता चला कि 2/3 of the mice, those whose cages were rotated, they developed cancer. 1/10 of the mice in stationary cages developed cancers. वहां पे 66% और इधर 10% था. अब कंक्लूजन क्या निकला है कि स्ट्रेस एनहांसेस डेवलपमेंट ऑफ कैंसर. 16 का आंसर आप देखो, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है. कंक्लूजन देखो. एजम्पशन का पहले मैंने बताया था, एक और तरीका देखो एजम्पशन का. एजम्पशन क्या होता है? एक्चुअली हमारा प्रीमाइस है और प्रीमाइस पे जजमेंट लेते हैं. प्रीमाइस में जजमेंट में एक लिंक ऐसी होती है कि जो दिखी नहीं रहती. वो उसको लगता है, वो एजम्पशन है कि मुझे पता है, लोगों को ही पता होगा. व्हाट ही सेड कि एक ट्रायल किया कि स्ट्रेस का कैंसर पे क्या असर होगा. गोल 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 पिंजरे को हटाया और दूसरे पिंजरे को स्टेशनरी रखा. तो जो गोल गोल घुमाया था उसमें कैंसर बढ़ गया. देखो, तो ऐसा बोल रहा भाई कि गोल गोल घुमाने के कारण कैंसर बढ़ा है, पर वो ये नहीं बोल रहा है. वो क्या बोल रहा है कि स्ट्रेस के कारण कैंसर बढ़ा. अरे स्ट्रेस का और गोल गोल घुमाने का क्या मतलब है? प्रैक्टिस इज. एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि जिस पिंजरे को हमने डिसोरिएंटेड वे में, है ना, वी twisted and turned it in that particular cage, the incidences of cancer were high. So say that, but what you are saying कि pressure stress causes. What is the result of stress and cages, rotation of cages? So he says, fool, that is my assumption and you should know it. तो क्या हो गया आंसर? साइंटिस्ट वन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा. कहाँ गया ये? 16 है ना. हाँ 16. यस, आंसर इज ए आगरा. परफेक्ट ये आगरा. बिल्कुल परफेक्ट ये आगरा. आप पूछो भाई क्या उस, तुमने कहा घुमाने वाले में, और आप क्या बोल रहे हो कि स्ट्रेस वाले में. तो बोला घुमाने को ही स्ट्रेस बोलते हैं बेटा, घुमाने से स्ट्रेस हो जाता है. दैट इज इज assumption. 17. एक और हमने ओपन कर लिया. एसेंस. एसेंस में आप ध्यान से देखना, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं. यू जस्ट रीड इट, है ना. एक अपने को कुछ करना ही नहीं है. देखो, दिस सच ए ब्यूटीफुल पार्ट. अपने को कुछ करना ही नहीं है, उसने छोटे कर रखे हैं.
अपने को देखना है कि इसमें कुछ बाहर से आया या इसमें कुछ अंदर से आया। जिस इसमें बाहर से कुछ भी नहीं आया हो और सारा अकोमोडेट हो गया, वो पता ही चल जाएगा कंपैरिजन से। सो दैट इज आवर आंसर। ऑल दो पहले आराम से पढ़ लेते हैं क्या क्या है। Although almost all climate scientists agree that Earth is gradually warming. फर्स्ट पॉइंट आधा सेंटेंस बोल रहा है एग्रीमेंट है वार्म हो रहा है, और although डाला है तो चेंज भी आएगा। They have long been of two minds. एग्रीमेंट है वार्म हो रहा है, डिसएग्रीमेंट है कि प्रोसेस क्या है वार्म होने का, है ना, अबाउट द प्रोसेस ऑफ क्लाइमेट शिफ्ट विद इन द लार्जर पीरियड ऑफ चेंज। ठीक है, तो एक लाइन से पता चल गया सब एग्री तो कर रहे हैं चेंज हो रहा है, पर कैसे हो रहा है। अब वो एक तरीके के लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोसेस वर्क्स लाइक ए जायंट ओवन और फ्रीजर वार्मिंग और कूलिंग द होल प्लेनेट एट द सेम टाइम। अदर्स क्या बोल रहे हैं कि अपोजिट शेड्यूल्स, नॉर्थ में होता है साउथ में होता है, ऐसा इकट्ठा नहीं होता, टुकड़े टुकड़े में होता है, लाइक एक्सैजरेटेड सीजन्स। रिसेंट रिसर्च, ये थर्ड आ गया, जर्मनी में बोल रहा है कि एग्जामिनिंग क्लाइमेट पैटर्न्स इन सदर्न हेमिस्फीयर्स लाइक एक्सैजरेटेड सीजन्स, recent, repeat हो गया like recent research is that warming and cooling occurs at alternate times in two hemispheres. A more definite answers they made will allow scientists a better prediction when and how the shift is going to happen. सीधी सी बात है भाई, कोई एग्री नहीं हो रहा है, एक बोल रही है, एक बोल रही है, एक बोल रही है, और अगर आंसर मिल गया तो फायदा हो जाएगा, इतना सा है। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। 17 का अभी तक पारस ने ही डाला है आंसर। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, scientists have been unsure whether rapid shift in the Earth's climate happen all at once or in opposite schedule. बिल्कुल बाहर नहीं गया है अभी। In different hemispheres, यहाँ तक बिल्कुल बाहर नहीं गया है। Research will help a definite answer and better predict climate shift. बिल्कुल एक पैसे का भी बाहर नहीं गया है। अब देखते हैं कुछ छूट गया होगा तो दूसरे से मिल जाएगा। Scientists have been unsure whether rapid shifts in Earth happen all at once or opposite in different hemispheres, बराबर वही बोल रहा है। Finding a definite answer will help them better predict climate shifts in the future. Research will help finding a definite answer. Scientists have been unsure whether rapid shifts in the Earth's climate happen all at once or on opposite schedules in different hemispheres. बिल्कुल word to word same है। Finding a definite answer will help them better predict climate shifts. Research will find help a find, और ये क्या बोल रहा है, a definite answer will allow. So बॉम्बे का लैंग्वेज ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया, सभी ने कर दिया, मैं क्या आगे पढ़ूं। That's a great one. Almost everybody did it. देखिए यहाँ पे जानवी दोनों में क्या फर्क था। रिसर्च विल हेल्प टू फाइंड a definite answer, और ये बोल रहा है फाइंडिंग एन आंसर विल हेल्प, आंसर ढूंढना हमें फायदा होगा, और ये बोल रहा है रिसर्च आंसर ढूंढने में फायदा करेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए मोस्ट डेफिनेट आंसर विल अलाउ, आंसर विल हेल्प, सेकंड इज ए गुड आंसर। यस 18, local communities have often come in conflict with agents trying to exploit resources. लोकल कम्युनिटी, कुछ एजेंट है बाहर से आए होंगे, रिसोर्स अप्लाई कर रहे, जंगल काट रहे, जमीन में से मिनरल्स निकाल रहे हैं, and they're taking out at faster pace for an the purpose is commercial industry economy। ठीक है, पहली आ गई कि बाहर एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बाहर से आने वालों को और रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने वालों को और लोकल्स का। मोर ऑफन दैट नॉट जो एजेंट बाहर से आए हैं आर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट। अब ये जो है ना, ग्रांट ऑफ दिस थिंग दिस आर द एग्जांपल्स। एक ट्रीटमेंट प्रेफरेंशियल दिया है, फॉर एग्जांपल द प्रोविजन ऑफ रॉ मटेरियल, ये एग्जांपल कभी इसमें नहीं आता है, समरी में भी नहीं आता है।
विद द इनजस्टिस सो कंपाउंडेड, इनजस्टिस डबल आ गया, एक तो बाहर से आए हैं उन्हें ज्यादा फायदा मिल रहा है, लोकल कम्युनिटीज को प्रॉब्लम हो रहा है, दे आर एट द रिसीविंग एंड, मतलब नुकसान हो रहा है, एट यू बीइंग एट द रिसीविंग एंड मतलब यू आर लूजिंग। हैव टू रिकोर्स, एक ही रास्ता रह जाता है, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या है? रेजिस्टिंग बोथ द स्टेट एंड आउटसाइड एक्सप्लॉइटर्स। कैसे? प्रोटेस्ट करके। दिस स्ट्रगल might perhaps be seen as manifestation or a result of a new kind of or the beginning of a new kind of conflict. सबने सी कर दिया है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट गिवन, ये देखते हैं, न्यू काइंड ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं, seen as a manifestation, so new kind of class conflict सीधे चला गया। द ग्रांट ऑफ लॉन्ग लीड्स एग्जाम्पल आ गया। क्या बात है, कुछ रह ही नहीं है, you people are becoming better and better, you have not informed me your latest scores from corresponding test, because I'm very sure that very fast you will start scoring high. Once again I'll repeat, इजी बॉल मिली छक्का मारना है, उसके लिए प्रैक्टिस पॉकेट मार्क से ही होगा, 1 घंटे का तो है यार। मॉड एंड यू लर्न टू टेक प्रेशर ना, पॉकेट मार्क पे बैठो, बोलना आज इसमें से 45 निकालने, 90 में से 45 निकालने, कैसे नहीं आते, तो फिर वो इजी नहीं लगेगा। इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि 25 मार्क्स आ रहे हैं, अरे 25 मार्क नहीं 50 लाओ तो फिर बोलना इजी है, तो फिर क्या होगा, बैक ऑफ योर माइंड कैलकुलेशन उसका कंप्यूटर ऐसा चलेगा, यार 90 में तो मैंने 40 मारे थे, तो 270 में 120 तो मार ही लूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू डोंट नो कहाँ मैथ्स इजी है कहाँ डिफिकल्ट है। मॉडर्न बोर्गीज सोसाइटीज, बोर्जीज बोर्जिस बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन है, दैट इज मींस मिडिल क्लास। लेट्स से फिलोसोफर है, व्हाट ही सेड कि मॉडर्न मिडिल क्लास इज डिकेंडेंट एंड इनफीबल, कमजोर हो गया है, डिकेंडेंट यानी सड़ गया है, एंड एनफीबल, फीबल यानी कमजोर, कमजोर हो गया है। अब दिस हाइफन इज फर्दर एक्सप्लेनिंग व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, a victim of excessive development of rational faculties at the expense of will and instinct। इंस्टिंक्ट और विल होते हैं, जो एनिमल बिहेवियर होता है ना, उसको हमने निग्लेक्ट करके रैशनल इस पे चले गए, ये उसका कहना है। अगेंस्ट द लिबरल रैशनलिस्ट स्ट्रेच ऑन द इंटेलेक्ट, नित्शे अर्ज, क्या बोल रहा है वो, कि रिकॉग्नाइज करो द डार्क मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंस्टिंक्ट एंड डिजायर्स, and these are the true forces of life। Smother the will को जाने दो, with excessive, अगर करोगे will को, जो इच्छा है आपकी, with excessive intellectualization, तो एक spontaneity खत्म हो जाएगी, and that spontaneity is the spark of cultural creativity, and that spontaneity ignites a zest, a zeal for living। The critical and theoretical outlook destroys the creative instinct, so man's manifold potential to be realized, he must forego, intellect पे ज्यादा ध्यान मत दो, and nurture again the root of human existence। सिंपल सी बात है। जानवी भी उल्टा बोल रहा है, भी उल्टा बोल रहा है, ये फिलोसॉफी वाले जो बोलते हैं ना, उसके उल्टा लिखते हैं। ये देखो, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद फोर्सेस ऑफ लाइफ फुल स्टॉप से पढ़ रहा हूँ मैं ना, आई एम रीडिंग फ्रॉम हियर। फिलोसॉफी को पढ़ने का भी तरीका देखो। स्मॉदर, स्मॉदर मतलब पिक्चर डालो, शांत कर डालो, दबा डालो, द विल विथ इंटेलेक्चुअल। अगर ऐसा करोगे तो क्या करोगे, यू विल डिस्ट्रॉय द स्पॉन्टेनिटी। वही स्पॉन्टेनिटी डिस्ट्रॉय अच्छी है बुरी है हमें कैसे पता, तो बता रहे स्पॉन्टेनिटी क्या करती है, स्पार्क करती है कल्चरल क्रिएटिविटी को, एंड इग्नाइट्स, भड़काती है जिंदा रहने की, जेस्ट फॉर लिविंग। तो बोल रहा है कि ये इज नॉट इन फेवर ऑफ स्मॉदरिंग द will with excessive,
Now C, somebody has come. Let's say criticizes the intellectuals for a modern society by not nurturing means creative रखना पड़ेगा एक, but excessive for the decline of modern society and suggest डी में क्या है, डी और इससे सी को रखते हैं, फोर को इंटेलेक्ट नहीं कहा है, उसने कहा नर्चर करो, तो सी और डी को पढ़िए ध्यान से। सी बोल रहा है क्रिटिसाइजेस द इंटेलेक्चुअल्स फॉर एनफेमलिंग सोसाइटी फॉर नॉट नर्चरिंग, है ना, हाँ, एक्सेसिव, ही इज ब्लेमिंग, he is blaming, he is blaming, so answer will be D, he blames and then he suggests that nurture करो। The first thing उसने blame किया है कि society has decadent, infable, तो इसलिए सी से अच्छा आपका दिल्ली है। चलिए पैराजम्बल, बहुत टाइम बचा है, वी हैव लॉट ऑफ टाइम, एंड आज इतने फटाफट कैसे हो गया, पीपल डिडंट आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। 20th पैराजम्बल, now today what I'll do, I'll say it's wrong, you give me the answers and I'll say it's wrong, I'll say it's wrong, I want, किसका सही है वो नहीं बताऊंगा मैं, put your answers and I'll tell you। ये बंदा जो है ना जॉर्ज फ्लॉयड, he died, अमेरिकन पुलिस what it does to pin you down, they एक नी से गर्दन दबा देता है, ये बेचारा बोलता रहा, सांस घुट रही और मर गया। आधे सही है आधे गलत है, डालो डालो आंसर डालो, आई वॉन्ट टू मेक यू परफेक्ट। दो आंसर और आएंगे फिर उसके बाद आई गिव यू माय फर्स्ट क्लू। देखिए एवरीबडी हैज पिक्ड अप, डी इज राइट, एन एलिफेंट एंड a human being made the world cringe and momentarily forget the COVID crisis। सीधे सीधे बोलता हूँ आपको ध्यान नहीं आता, so there was a famous movie सत्या, there he says मुंबई का किंग कौन, भिगो मात्रे, तो पैराजंबल का किंग कौन, राइटर, राइटर ने क्या लिया पहले, ह्यूमन लिया या एलिफेंट लिया, किंग, ही इज द किंग। फिर से रीराइट करो, उसने पहले एलिफेंट लिया है और बाद में ह्यूमन लिया, दैट इज लेसन, राइटर इज द किंग, उसकी क्रोनोलॉजी आप फॉलो करोगे, उसकी क्रोनोलॉजी में एलिफेंट पहले आ रहा है, ह्यूमन बीइंग बाद में आ रहा है, इसलिए उसके क्रोनोलॉजी के हिसाब से डी के बाद आएगा बी, एलिफेंट, और बी के बाद ए आएगा, है ना, सी तो बचा ही है, बाद में चला जाएगा, इट्स अ क्वेश्चन व्हिच हैज नो आंसर। So got it here, यहाँ पे I kept it to give you one big lesson that author decides whenever there is a chronology, आपको प्रॉब्लम पड़े पहले क्या आएगा, ऑथर को देख लो, ऑथर ने क्या डिसाइड किया है, author has decided that I will talk about elephant first and then I'll talk about human beings, and that is why his this thing was D comes first. An elephant and a human being made the world cringe and momentarily forget the COVID crisis. Will be followed by elephant, that is Bombay. Why did the pathetic sight of an injured pregnant elephant standing helplessly in a river, mutely waiting to die, move us to tears? Why did George Floyd, then he comes to men, last few words, can't breathe, but we responded differently. Why? डिफरेंटली क्यों कर रही है, आंसर ही नहीं आया, तो सी तो पीछे ही जाना था, बी पहले ही आना था, बट सवाल था सी बी होगा, बी ए होगा या
ए भी होगा, ऑथर ने डिसाइड कर लिया। थर्ड कृष्णा। अब 21st, उठाइए डालिए आपके आंसर। अगेन आई विल गिव यू क्लू 1, क्लू 2, क्लू 3। Answer for 21st. I'm waiting. We have enough time. We have, I think, almost 25 minutes, and we have three parajables to go. I want all of you to do it right. ये गर्ल्स कहाँ चली गई थी? कौन? जानवी। इधर निशांत भी बिल्कुल शांत बैठा है। अभिषेक क्या हो गया? टायर्ड? पारस? I want your answers right. Question number, so that I'll remind. Janvi is the first one to give. Paras has given answer. Now here I can see D और C में झगड़ा चल रहा है, और I want more people to come. अभिषेक श्रीवास्तव, सी और डी में झगड़ा चल रहा है। देखते हैं सी और डी में। एक क्लू दे रहा हूं आपको। इफ यू रीड डी, I'll read for you. The condition endured by fishermen in my constituency of Thiruvananthapuram are pitiable. अभी किसकी बात कर रहा हूँ? तन्वी देखो कैसे फंस गए आप, फिर ध्यान से देखना। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट दिस इज शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम, आई कुड मेक आउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ही सेड इन माय कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिशरमैन हैं उनकी परिस्थिति बहुत खराब है। सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, देयर इज अ कॉमा, बट दे आर नॉट द ओनली वंस। दूसरे की बात इसके बाद आएगी। दूसरा कहाँ है? ए में तो द कम्युनिटी कहा है, ये ओपनर हो नहीं सकता है। सेकंड में मोस्ट है, ये ओपनर नहीं हो सकता है। आप किसे लोगे? आपका डी तो ओपनर होगा ही होगा। They are not the only one, they are the fishing communities of the India as such. The condition endured by fishermen in my constituency are pitiable, but they are not the only ones. इसके बाद क्या बोलूंगा? The whole community has the same problem. चलिए फिर से बिठाओ। दूसरे कौन है? But they are not the only one. Most live below poverty line and work incredibly hard just to stay afloat. अब डीवी दे दिया मैंने। D B C A. Yes, let me check. Yes, it is. D B C A is the right answer. See once again, the condition endured by fishermen. मेरी कॉन्स्टिट्यूट के जो फिशरमैन हैं उनकी हालत बहुत खराब है, बट दे आर नॉट ओनली वन। ज्यादातर फिशरमैन जो है दे लिव बिलो पॉवर्टी लाइन एंड है ना, जस्ट कैसे भी जिंदा है। एंड देन आवर फिशिंग कम्युनिटी रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट। अब मैं नहीं रहा, मैं के बाद क्या हो गया? अब अपना हो गया। पहले सिर्फ तिरुवनंतपुरम का था, अब पूरे हिंदुस्तान का हो गया। आवर फिशिंग कम्युनिटीज रिप्रेजेंट one of the most economically challenged and marginalized sections of our society.
The improvement faced by the community, our community, is a reality across the nation. Impoverishment, garibi, bhukapan. And little by the way of redressal has been done. Nothing has been done in last 4 years. TVCA. आपका ट्रिक कहाँ था? दे आर नॉट, और वहां से वो आ जाएगा मोस्ट लिव, और मोस्ट हो गया, वहां से सारा आ गया. अब नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट सीए जो है, नॉट तिरुवनंतपुरम, द होल ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी. 22. 22 तो इजी है, बहुत इजी है. इट विल बी ए शेप इफ वी गो रॉन्ग. 22 if we go wrong, it will be a shape. 22. 22. The trick is in E. E को ध्यान से पढ़ा तो आप गलत नहीं जा सकते. कि वहां पे उसने क्लू दिया है V2. हम भी, कोई और भी है हमारे अलावा. We too tend to experience the metaphor. और कोई भी experience करता था. So 22nd. Me too. V2. कृष्णा, कौन से इसका डाला है आपने आंसर? वो तो पिछले इसका था ना. इसका 22nd. I want Krishna from you. कृष्णा, देखो भाई आंसर. श्रेष्ठा, बकाब, जानवी, अभिषेक त्रिपाठी आ गया आंसर लेके. देखो CDEAB. चलो अभिषेक के इसमें सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ अभिषेक, ये 5 है ना, आपने 4 ही डाले. पारस ने डाला है 5. आई डोंट नो होल इज, बट सी ओपनर इज राइट. सी ओपनर इज राइट. यस, फास्ट. आई वांट यू पीपल टू गिव आंसर. सी ओपनर इज राइट. डी तो उसके बाद आएगा ही नहीं. एक मिनट. डी नहीं आएगा. सी ओपनर राइट है, डी नहीं आएगा ओपनर में. चलो करो कोशिश. दिस इज द एग्जैक्टली दिस प्रिसाइजली द मोमेंट वेदर यू विल लर्न. निशांत ने सी के बाद ए ला दिया. चलो निशांत, सी ए तो सही है, पर उसके बाद डी नहीं आएगा. बहुत बच्चों वाली मिस्टेक कर रहे हो निशांत. सी ए सही बिठा लिया, but you are a kid's mistake you are doing. Simple, a cardinal principle of the parajambal is pronouns are your brothers and sisters. Never neglect them. भाई हैं अपने वो. अभिषेक अग्रवाल ने सी ए के बाद बी कर दिया. निशांत got it? What mistake you did? B is talking about she is the sun goddess. Goddess baby की बात कर रहे हैं वो. तो सी ए भी तो सही आ गया. उसके बाद E and D. V2 लास्ट में देखो इसने कहा है we too tend to experience metaphor darkness in our life as is happening with some during the prolonged period of isolation, a kind of darkness within, so as to speak. सारी दुनिया ही कोविड के आसपास घूम रही है. वेल डन कृष्णा. सी ए बी. एस कहाँ से आ गया? ई डी बराबर. आपने एक छोड़ दिया. राइट, नो प्रॉब्लम. निशांत राइट. 23. 23. 23.
23. We have received information about the maze being sneaked in. देखो ऊपर क्या लगा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है बेटा। ए में देखो द बिगिनिंग में इन्वर्टेड कॉमा है, तो एंड में तो डालना चाहिए था। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, क्या हो गया? बी को देखते हैं। सिक्योरिटी इज ऑन द हाई अलर्ट एंड विल प्रोबेबली चेक एवरी कार एट द रेंज। तो यहाँ पे दूसरी गड़बड़ कर दी इन्होंने, बिगिनिंग में नहीं लगाया, एंड में लगा दिया। क्या मतलब है यार? आई थिंक एरर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आई डोंट नो। बट देन दिस इन्वर्टेड कॉमास तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसका मतलब पैराग्राफ। In a society where lockdown or no lockdown, Indian man expect to sit and be served by women in their lives. I suppose all the struggling bikos are wives, Marathi में they call it bikos, truly have a newfound appreciation for their bikes. काम वाली बाई, ये जो चेष्टा 23 का डाला है आपने, सी इज नॉट द ओपनर, क्योंकि अच्छा सी इज ओपनर, सी इज ओपनर, आई एम सो सॉरी, सी इज ओपनर। मैं डी को पढ़ लेता हूँ, चलो बाकी देखते हैं, बाकी लोगों को डालिए। कंसिडरिंग द बिल्डिंग इज इन खार एंड नॉट कारगिल, द हाई सिक्योरिटी अलर्ट। हाई सिक्योरिटी अलर्ट पे आर्टिकल डाल दिया है द, दैट मीन्स वो हाई सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है। क्रैक्ड मी अप एंड डेयर आई से मेड माई डे। देखिए कितना अच्छा खेल रहे हैं, मेड माई डे बोलते हैं ना, ये सर्वेंट मेड सर्वेंट की बाई की बात चल रही है। Meanwhile, in the foyer of Jubilee Springs, there is a new notice. A new notice, तो नोटिस तो इसके बाद आएगा, नोटिस इसके बाद आएगा। और नोटिस के बाद बोलेंगे कि भाई ये कारगिल में थोड़ी है, ये अलर्ट जो दे रहे हो तो नोटिस अलर्ट है। और उसके बाद शी इज सेइंग कि ये खार में है भाई, कारगिल में नहीं है। निशांत कृष्णा सी आपने ओपनर लिया, सी के बाद ई लिया, यश, मीनवाइल ए और बी इज नोटिस एंड डी इज, यू गॉट इट। तीन चीजें पता चली आपको। इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ना, दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, और उसका एंड होने का रास्ता देखना चाहिए। अ न्यू नोटिस मतलब नोटिस की अभी तक बात नहीं हुई है, इसके बाद नोटिस आएगा। एंड कंसिडरिंग द बिल्डिंग इज इन खार एंड नॉट कारगिल, हाई सिक्योरिटी अलर्ट। देखो अब क्या क्या हो रहा है, लोग स्मगल करके दारू लाते थे, अब बाई ले आते हैं क्योंकि मैडम का काम नहीं चलता है। वर्ल्ड इज चेंजिंग अ लॉट। एंड 23rd लास्ट, वी हैव 10 मिनट्स। अब मैं देखता हूँ, लेट्स सी कौन पढ़ाई करता है, आज चेकिंग करता हूँ मैं। जानवी, you were not there in the last class. Anjali, you were not there, 1 2, and अभिषेक था, पारस था। आज कृष्णा धूम मचा रहा है, तो कृष्णा यू एंड निशांत, डालो फटाफट आंसर, वरना आपको कुछ पेनल्टी लगाता हूँ मैं, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दूंगा। 24th, but what use is this spine of mine, spine है ना, if I cannot employ its services to the fullest? My possessing a spine suddenly seemed like a huge divine blessing. The spine screamed, snarled, "You are lucky you still have a spine." The spine was right. I still have a spine, but am I using it? I look around me and I'm shocked to see millions of the poor citizens managing without spine. अंदर चीजें देखिए, जानवी 24 में बेटा, 24 श्रेष्ठा ने 24 में आ गया है। ई, ई से स्टार्ट नहीं होगा श्रेष्ठा, ई से स्टार्ट इसलिए नहीं होगा। आई लुक्ड अराउंड मी, टॉपिक स्पाइन से आया है, तो मैं सबको बता देता हूँ, ओपनिंग सी से होगा।
अच्छा, जानवी का सही है, सी से ओपनिंग किया है। जानवी सी के बाद भी नहीं आएगा। करेक्ट योर आंसर। Opener is C. Paras opener is C. The spine screamed, "You are lucky you still have a spine." And the spine was right. I still have spine. But am I using it? I looked around me and I'm shocked to see millions of co-citizens managing without one. C, D, E. अब सिर्फ दो बचे हैं आपके पास, बी होगा या ए बी होगा, इतना बता दो मुझे। C, D, E, B, and A. Your answer is C, D, E. The spine snail. Are you? You're lucky you still have a spine. And the spine was right. Why? Because I still have a spine. But am I using it? I looked around and I'm shocked to see millions of citizens without one. And because of that, इतने लोगों को देखा किसी के पास नहीं है. So my possessing a spine suddenly seemed like a huge divine. So E immediately C के बाद बैठ सकता था. But the problem is C E connect हो रहा था D से. My possessing a spine suddenly seemed like a huge divine blessings. But what's the use of this blessing if I can't enjoy in the service of the fullest? Very well done. We have 24 questions. अपनी speed भी अच्छी है. You people tried very good. Now, one I like to tell you, आपने पूरा explore नहीं किया. You got total access. Total access में you got three English के score builders हैं. More score builders will come. You have score builders in reasoning. You have score builder in maths. आपके पास 30-30 क्वेश्चन के कम से कम 25 से 30 वोकैब और ग्रामर के टेस्ट पढ़े हैं. दैट विल जंप टू द 100 द नंबर. मैथ्स में नाउ टुडे आई पुट थर्ड दिस थिंग, मैथ्स फॉर डमीज, थर्ड टाइम स्पीड डिस्टेंस. नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद व्हाट यू कॉल इट, नंबर सिस्टम्स. बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चंस. Do them and nothing. You have to spend hardly 1.5 hours at catcorner.co.in and then see you do it, and then you see the difference. I have written this thing and people are smoking MCAT, SIMCAT, MOCCAT of CL. Good scores they are doing. But once again I tell you, easy question पहचान के उसे जितने जल्दी उड़ा दोगे वही एग्जाम का मंत्र ऑफ सक्सेस है. If you're good in maths, if you're bad in maths, वो मैथ्स जो डमीज है ना, इसलिए आप देखोगे मैंने एक्सप्लेनेशन, नो एक्सप्लेनेशन. आप दिमाग लगाओ ये ऐसा क्यों किया, नहीं तो आप इस पे डालो डिस्कशन पीस रहे ऐसा कैसे कर दिया. हाफ ऑफ द क्वेश्चंस बिना देखे हो रहे. और ऐसे कोई भी कैट का पेपर उठा लाओ, उसमें यू विल सी 10 to 12 क्वेश्चंस इन मैथ्स सट से जाते हैं. 8 से 10 क्वेश्चन तो मिल जाते हैं. जैसे 8 से 10 क्वेश्चन अगर 10 मिनट में हो, आप ढूंढ लेते हो, शेर ही बन जाओगे आप यार. फिर 40-50 निकालने में क्या दिक्कत है. इंग्लिश प्रैक्टिस इतनी करोगे कि 34 क्वेश्चन पूरे करोगे. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नॉट कमिंग. एंड दैट इज व्हाई द शीट आई एम टेलिंग यू, ये शीट आई डोंट पुट इट इन टेस्ट. इफ आई पुट इन टेस्ट पीपल विल नॉट बी एबल टू स्कोर इवन 10% because I'm training you, so I'm creating a lot of obscurity, and I'm very happy that you people are scoring very good marks. चलिए then, okay, see you. Anything anybody wants, any message, anything, then we'll see you on next uh, Saturday, I suppose, right? Okay, and I'll start putting those. I've started putting vocab, and I'll start putting those. What do you call it? Reading, reading of the day, right?
Thank you.